گیمبر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے آن نیوز عابد فریدی سے۔ انتہائی افسوسناک خبر گیمبر پریس کلب اوکاڑا کینٹ سرپرست ملک عطا محمد موہل کے چچا زاد بھائی امیرہ موہل گزشتہ چند دن قبل ریلوے کراسنگ کے قریب روڈ ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ساہیوال DHQ ہسپتال زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کل خانی کا ختم 15 تاریخ منگل کو ان کی رہائش گاہ پر ادا کیا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں کشمور کا۔ دیرہ موڑ میں پٹ فیڈر کنال پر بنائی جانے والی پل کے مزدور مزدوری نہ ملنے پر ٹھیکیدار کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ فوری مزدوری دینے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق کشمور کے علاقے سندھ پنجاب بارڈر دیرہ موڑ پٹ فیڈر کنال میں بنائی جانے والی پل کے مزدور ٹھیکیدار فرید سولنگی کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مزدوروں کا کہنا ہے گزشتہ 3 ماہ سے یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں پر ٹھیکیدار فرید سولنگی مزدوری نہیں دے رہا اور آج صبح کے جھوٹے وعدے پر ہم ڈیلی کما کر کھانے والے مزدور ہیں۔ مزدوری نہ ملنے سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے۔ ڈپٹی کمشنر کشمور نوٹس لے کر فوری مزدوری لے کر دیں، مزدوروں کا مطالبہ۔ روپیو نہ تو روز چاہے تو آج صبح اچو چکر آنے تو موٹی ونجو تھا روز چاہے تو آج اچو صبح اچو۔ اچھا بندو ٹھیکو کہیں جو آئے ٹھیکو کہیں پل جو ٹھیکو کہیں ٹھیکو آسائیں فرید ٹھیکیدار سولنگی اچھا کروڑ جو ہے اچھا۔ گرمی کے ستائے ہوئے ٹورسٹ مختلف تفریحی گاہوں سے انجوائے کرنے کے بعد PC بھوربن بٹ کڑاہی کا رخ کرتے ہیں۔ پرفضا مقام پر کڑاہی کھانے کا مزہ اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ بٹ کڑاہی بھوربن میں موجود ہمارے نمائندے رئیس بازی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بالکل، اس وقت میں PC بھوربن بٹ کڑاہی پہ موجود ہوں۔ گرمی کے ستائے ہوئے ٹورسٹ کا اس وقت ملکہ کوثر کا رخ کیا ہوا ہے، مختلف سیرگاہوں کا رخ کیا ہوا ہے۔ سیرگاہوں سے فارغ ہو کر وہ بٹ کڑاہی پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر پرفضا ماحول پر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے ساتھ آنر بٹ کڑاہی کے محمد سعید صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کون کون سی کڑاہیاں تیار ہوتی ہیں اور یہاں پر لاہور لکشمی چوک والا ذائقہ بھی موجود ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی ہمارے پاس ہر قسم کی کڑھائی موجود ہے۔ چکن کڑھائی ہے، مٹن کڑھائی ہے، دیسی چکن کڑھائی ہے اور بونلس ہانڈی ہے اور مغلائی ہے اور ہماری اسپیشلٹی ہے دیسی چکن کڑھائی مکھن میں بھی تیار کرتے ہیں، ہم اولیو آئل میں بھی تیار کرتے ہیں اور دیسی گھی میں بھی تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپیشل باربیکیو ہے۔ باربیکیو میں چکن ونگز ہیں، چکن ٹکے ہیں اور مٹن چانپ ہے اور ہم پراپر میرینیشن کے ساتھ اس کو تیار کرتے ہیں اور ہمارے ہوم میڈ مسالے ہیں اور ہر قسم کے جو ہے نا مضر اثرات سے پاک ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نا جو بھی گاہک آتا ہے ہمارے پاس وہ انجوائے کرتا ہے اور ہمارا جو ہے نا بٹ کڑاہی کا بہترین فیڈ بیک آ رہا ہے۔ موسم کے لحاظ سے تو یہ PC چوک ہے لیکن کھانے کے لحاظ سے جو ہے نا یہاں پہ کھا کے لوگ لکشمی چوک کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے ہم لکشمی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی آنر محمد سعید کا یہی کہنا تھا کہ بٹ کڑاہی کا ذائقہ لاہور لکشمی چوک والا ذائقہ بھی یہاں موجود ہے۔ ٹھنڈی جگہ پہ آ کر ٹورسٹ یہاں آ کر پرفضا ماحول میں کھانا کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور ان حسین لمحات کو اپنی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور دوسروں تک شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رئیس عباسی، آن نیوز بری۔ انجمن آرائیاں پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں محمد جمیل کیبلز والے کے اصالِ ثواب کے لیے مرکزی دفتر انجمن آرائیاں لاہور میں قرآن خوانی اور تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب میاں محمد سرور، جنرل میاں غلام مصطفیٰ جیلانی، میاں جلیل احمد شرقپوری، آرائیں برادری اور پاکستان سے انجمن آرائیاں کے مرکزی باڈی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ شیخوپورہ سے چیئرمین چودھری محمد حسین، صدر میاں مقبول احمد، جنرل سیکرٹری میاں شاہد اسلم جلندری، سینئر وائس چیئرمین ملک عمران فیصل، نائب صدر میاں زاہد صدیق، میڈیا کوارڈینیٹر چودھری مبشر مظہر، چیئرمین یوتھ ونگ وقاص سرور رامے، صدر ایپکا شیخوپورہ میاں مجاہد، میاں مزمل نے شرکت کی۔
ताज़ियती रेफरेंस में मीडिया से बात करते हुए मियां मकबूल अहमद ने कहा कि हम अपने एक मुखलिस भाई से जुदा हो गए। मरहूम की फलाह आमा और समाजी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। मरहूम ने हमेशा अराइयां बरादरी के प्लेटफॉर्म से अपनी बरादरी को सपोर्ट किया है। उम्मीद है कि चौधरी जमील मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी औलाद भी दुखी इंसानियत की खिदमत करेगी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और मियां जलील शर्कपुरी ने मियां मकबूल अहमद से खुसूसी मुलाकात में उनकी अराई बरादरी के लिए खिदमात को खुसूसी तौर पर सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शिकारपुर जिला में अमन व अमान की सूरत हाल बदतर। लूटमार, डकैतियां, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुसलसल इजाफा। ठारूपुर के इलाके में नामालूम मुसल्लह मुलजिमान की खातून से दिन दिहाड़े लूटमार। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुलजिमान ने खातून के कानों से तलाई बालियां उतार लीं। पुलिस ने कहा है कि मुसल्लह मुलजिमान ने ज़बरदस्ती तलाई बालियां उतारी। इस दौरान खातून के कान जख्मी हो गए। मुतासिरा खातून का लूटमार के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। बेटे के घर जा रही थी कि नामालूम दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लूटमार की। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर जबरदस्ती तलाई बालियां उतारी, जिससे कान जख्मी हो गए। लूटी गई तलाई बालियां वापस करवाई जाएं, मुतासिरा खातून का मुतालबा। शेखुपुरा गद्दारी के मुकदमे बनाना पुराना चलन है। परवेज रशीद मशरकी पाकिस्तान के वक्त आबादी 10 करोड़ थी। सिंध बलोचिस्तान और अब पंजाब भी गद्दार हो गया। रशीद सबको गद्दार कह दिया, मुहिब्बे वतन कौन रह गया? बिल्लियां और गधे और जानवर रह गए जो मुहिब्बे वतन हैं। परवेज रशीद का मजीद कहना था कि क्या ये चीलों, गधों, खच्चरों और घोड़ों का मुल्क है? इंसानों के मुल्क आइन से चलते हैं। जब नवाज शरीफ और जावेद लतीफ को इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया, जब वोट चोरी होगा तो चीनी की कीमतें बढ़ेंगी। मौजूदा बजट महंगाई और बेरोजगारी का सामान है। बजट जाली कागज की छतरी है जो रिलीफ नहीं दे सकती। गद्दारी के पर्चे बांटे जा रहे हैं। शफाफ इलेक्शन वाहिद हल है। वोट चोरी होगा तो महंगाई बढ़ेगी। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने बंद कर दें। 2013 से 2018 तक मुल्क ने तरक्की की। मुल्क मजबूत होगा तो इदारे तरक्की करेंगे। आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन इसका वाहिद हल है। डस्का और नौशहरा के अवाम ने वोट चोरी न होने दिया। शेखुपुरा ने भी मिसाल कायम की और वोट को इज्जत दो के नारे को बुलंद किया। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा और साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि विफाकी बजट अमीरों और मराहत याफ्ता तबके के लिए बनाया गया है, जिसमें गरीबों और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। करोड़ों अवाम इस साल भी गुर्बत की चक्की में पिस कर रह जाएंगे। पेंशनरों के लिए 10% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मतरातिफ मुआशी तरक्की का हदफ गैर हकीकी और मजाक से कम नहीं है। हुकूमत ने विफाकी बजट में गरीबों और आम आदमी के लिए कुछ नहीं रखा। बजट की बेशतर तजावीज़ पहले ही नाकाबिले अमल है। सेहत कार्ड अवाम के लिए सबर कार्ड के सिवा कुछ नहीं है। विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया है। तमाम तबकात बजट को अवाम दुश्मन करार दे रहे हैं। IMF की हिदायत पर तैयार किया गया ये बजट मुल्क कौम के भले के लिए नहीं, बैनुल अक़वामी आकाओं की खुशनुदी के लिए हुकूमत की तरफ से मुरतब किया गया है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, हर तरफ बदहाली डेरे डाले हुए है, जिसके बावजूद हुक्मरान सब अच्छा का राह गलाप रहे हैं, जो धोखाधही के मतरादिफ है। नवाज लीग अवाम के साथ खड़ी है और उन्हें हुकूमती इस्तेहसाल का निशाना बनने नहीं देगी। शेखुपुरा थाना मॉडल सिटी बी डिवीजन की हदूद लाहौर रोड पर आरिफ रामे के डेरे पर रात 11:30 बजे के करीब मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग, 4 गोलियां लगने से ताजिर आरिफ रामे शदीद जख्मी हो गया, जिसको मजरूबी हालत में DHQ अस्पताल शेखुपुरा के एमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जहां पर उसको तिब्बी इमदाद के बाद लाहौर के मियो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। याद रहे कि ताजिर आरिफ रामे पर 5 रोज़ में ये दूसरा कातिलाना हमला था, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। बताया गया है कि आरिफ रामे की तीमारदारी करने के लिए रात लाहौर रोड पर वाक़या उनके डेरे में चंद अफराद बैठे हुए थे कि अचानक ही मुसल्लह अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से आरिफ रामे शदीद जख्मी हो गए, जबकि दीगर बैठे हुए अफराद मुजजाना तौर पर महफूज रहे। मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए।
जख्मी ताजिर को DHQ अस्पताल शेखुपुरा के एमरजेंसी में मुंतकिल किया गया, जहां पर 4 गोलियां लगने की ड्यूटी डॉक्टर ने तस्दीक करते हुए आरिफ रामे को लाहौर के मियो अस्पताल में रेफर कर दिया। बी डिवीजन पुलिस के मुताबिक ताजिर आरिफ रामे या उनके वर्सा की जानिब से दी जाने वाली तहरीरी दरख्वास्त की रोशनी में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं परवेज रशीद और कैप्टन सफदर ने शेखुपुरा में मियां जावेद लतीफ़ से मुलाकात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैप्टन सफदर का कहना था कि हमारे कायद का लंदन से पैगाम है कि जावेद लतीफ़ से मुलाकात करके बताएं कि हमारी मंजिल बहुत करीब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैप्टन सफदर का मजीद कहना था कि वोट को इज्जत दो तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और कायद के बयानियों को मशले राह समझने वालों को तारीख याद रखेगी। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जावेद लतीफ़ ने कहा कि 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो सलूक हुआ वो असम्बली में बयान करेंगे। परवेज रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि सबको गद्दार कह दिया तो मुही बिल्लियां कदे जानवर रह गए। जो भी वतन है, क्या ये घोड़ों का मुल्क है? क्योंकि इंसानों के मुल्क तो आइन से चलते हैं। उन्होंने नवाज शरीफ और जावेद लतीफ़ को इंतकामी सियासत का निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वोट चोरी हो तो महंगाई होती है। 2013 से 2018 तक मुल्क ने तरक्की की। हुकूमत गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दे। आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन ही वाहिद हल है। शेखुपुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिटी सदर और टिकट होल्डर कौमी असम्बली सेठ गुलाम रसूल ने कहा है कि वफाकी बजट अवाम दुश्मन और हुकूमती मुआशी तरक्की के दावे झूठ का बुलंदा हैं। अल्फाज के गोरख धंधे और एदाद शुमार का हेर फेर मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली का आईनादार साबित नहीं हो सकता। इसके लिए मरबूत प्लानिंग और मौसर लाहे अमल की ज़रूरत है, जिसकी सलाहियत मौजूदा हुक्मरानों में नहीं। उन्होंने कहा कि बेरहमाना एहतसाब की बजाय इमरान खान बेरहमाना इंतकाम के रास्ते पर गामजन है। पीपल्स पार्टी के बगैर PDM की कोई सियासी अहमियत नहीं है। मरियम नवाज लीग को डायरेक्शन देने तक महदूद रहें। पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है जिसकी क़यादत तमाम हालात पर नज़र रखे हुए है और अवामी हकूक़ का अलम उठाने में सबसे आगे है। पार्टी क़यादत तमाम फैसले जमहूरी इक़दार को पेश नज़र रख कर करती है और आइंदा का सियासी लाहा अमल भी खुद तय करेगी। किसी की डिक्टेशन पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि PDM की आड़ में नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान सियासी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सियासी ब्लैकमेलिंग पर नहीं, जमहूरियत और जमहूरी इक़दार पर यकीन रखती है। असम्बलियों से इस्तीफे पीपल्स पार्टी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी, जिसे आसिफ अली जरदारी के सियासी फहमो फरासत और हिकमत अमली ने नाकाम बना दिया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, कोई दूसरी जमात उसका तस्वुर भी नहीं कर सकती। शेखुपुरा इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि नया वफाकी बजट तारीख साज साबित हुआ है, जिसमें अवाम को फ्राहम किया गया रिलीफ मसाली है। तमाम शोबों को तरक्की के भरपूर मौके फ्राहम किए गए हैं और अवामी खुशहाली की खातिर मुतादिद मंसूबों को आगे बढ़ाने समेत इदारों को फ़ाल किया गया है। हुकूमत इक़दामात से अवाम को हर सतह पर भरपूर रिलीफ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत समाजी, सियासी, मुआशी इनकलाब और इंसाफ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट निज़ाम के खिलाफ भी भरपूर जिद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बुनियादी चीज़ों तक अवाम की रसाई को आसान बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। खाने पीने की अशिया से लेकर इलाज, मुआवजे और सर छुपाने की सहूलतों समेत रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरियात पूरा करने के लिए कलील मुद्दत और तवील मुद्दत सरयू असर पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, जिनके समर आवर होने के बाद मौजूदा नस्ल तरक्की और खुशहाली के समरात आइंदा नस्लों को मुंतकिल करने की बेहतरीन हालत में होगी। वज़ीर आज़म अपने अज़्म को जमा रखे हुए और कौम की उम्मीद टूटने नहीं देंगे। सहवन शरीफ रिपोर्ट निज़ामुद्दीन गंभीर। सहवन शरीफ पुलिस की जानिब से रात देर से जामशोरू में सागर जुम्मन बर्दी और मोहम्मद किमरानी को सहवन शरीफ में सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान और दूसरे कौम परस्त कारकुनान के घर पर छापे। काफ़ी कारकुनों आज़ाद मंसूर चन्ना, मोहम्मद खान सोलंगी, ज़िया खंबर और सहवन सोशल फोरम के चेयरमैन को पूरी सिंध की तरह सहवन शरीफ और भान सईदाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने 7 सोशल फोरम के वक्ती चेयरमैन मौला बख्श नुहानी और SUP के रहनुमा आज़ाद मंसूर चन्ना, मोहम्मद खान सोलंगी, ज़िया कंभर, जामशोरू से सागर जुम्मन बर्दी, मोहम्मद कमरानी को भी गिरफ्तार कर लिया, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। शुजाबाद बैरून रशीद शाह गेट, बैरून चौताका गेट और उसके अलावा शहर भर के दीगर वाटर फिल्टर प्लांट्स बंद हैं। अवाम नलकों का पानी पीने पर मजबूर है, जो शुजाबाद इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शुजाबाद बैरून रशीद शाह गेट, बैरून चौताका और उसके अलावा करोड़ों रुपए मालियत से लगाए गए अवामुल नास को साफ पानी की फ्राहमी के लिए वाटर फिल्टर प्लांट्स गैर फाल, वाटर फिल्टर प्लांट्स की टूटियां तक गायब हैं, जो शुजाबाद की इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शुजाबाद शहर और गिरदनवा में कायम वाटर फिल्टर प्लांट नाकारा हो चुके हैं, जिसके बायस अवामुल नास नलकों का पानी पीने पर मजबूर है। एहलियान शहर ने MNA खान इब्राहिम खान, कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि शहर भर के वाटर फिल्टर प्लांट्स को चालू किया जाए ताकि एहलियान शहर वबाई अमराज में मुब्तला होने से बच सकें। शुजाबाद तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं मलिक जुबैर शरीफ, दिलशाद खान, चौधरी खलीकुर रहमान एडवोकेट ने इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाकी बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ फ्राहम करके हुकूमत ने अवाम से किया गया वादा पूरा किया है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं, अवामी खुशहाली और मुल्क की तरक्की यकीनी बनाने में कोई कसर उठा न रखी गई है। PTI की हुकूमत ने अवाम दुश्मन अनासिर के खिलाफ घेरा तंग कर रखा है। किसी को अवाम के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करप्ट सियासतदान एहतसाब से नहीं बच सकते। उन्हें लूटी गई कौमी दौलत की पाई पाई वापस करना पड़ेगी। हुकूमत के हालिया अवाम दोस्त विफाकी बजट पर अपोजिशन की तनकीद बेमानी है। मौजूदा हुकूमत का पेश किया गया ये विफाकी बजट मुल्की तारीख का मुअस्सर तरीन बजट साबित होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अवाम के रोज़गार और दरपेश मसाइल का मुकम्मल अदराक है। हुकूमत का फोकस आम आदमी की भलाई पर है, जिसकी खातिर हर सतह पर मुअस्सर इक़दामात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुआशी हालत दिन ब दिन सुधर रही है और मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। जो अपोजिशन जमातों को बर्दाश्त नहीं, करप्ट अपोजिशन रहनुमाओं की जारी साजिशों के बावजूद हुकूमत तमाम अहदाफ हासिल कर रही है और अवाम दोस्ती की नई तारीख रकम की गई है। शुजाबाद थाना सदर शुजाबाद के इलाके जलालपुर खाकी के करीब पुलिस मुकाबला। मुलजिम शौकत रोंघा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। शुजाबाद पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया, जिससे असलहा बरामद किया गया। मुलजिम को मजीद बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। जलालपुर खाकी के करीब मुलजिम के दीगर साथियों ने अपने साथियों को छुड़वाने की गर्ज से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी हक के हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायर किए, जिस दौरान गिरफ्तार मुलजिम शौकत रोंघा सकना शुजाबाद मुल्तान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि हमला करने वाले मुलजिमान रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। हलाक मुलजिम कत्ल, डकैती, राजनी, दौरान डकैती, रेप, अगवा, चोरी, मोटरसाइकिल समेत 40 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्विस था और इलाके में खौफ की इलामत समझा जाता था। हलाक मुलजिम 2 हफ्ते कबल थाना सिटी शुजा के इलाके हाजी शाहवाला में दुल्हन ज़्यादती केस में भी पुलिस को मतलूब था। वक़ुआ की इतला पर सीनियर अफसरान मौका पर पहुंचे। फरार मुलजिमान के खिलाफ थाना सदर शुजाबाद में मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। एलीट फोर्स पुलिस की वर्दियां पहने 13 डाकुओं की 3 भाइयों के घरों डकैती की बड़ी वारदातें थाना मोतरा के इलाके बद्दू के चीमा के जिम्मेदार घिराने में हुई। डाकुओं ने घर के मर्दों को नाजायज असलहे के बहाने काबू करके मशकें बांध कर कार्रवाई की। डाकू जुल्फिकार, इफ्तिखार और जावेद के घरों से 71 तोले तलाई जेवरात और 18 लाख नकदी लूट कर फरार। डाकुओं ने पुलिस की एलीट फोर्स की वर्दियां पहन रखी थीं। डाकुओं ने मर्दों को बाहर और खवातीन को एक कमरे में बंद करके लूटमार की। दौरान वारदात डाकुओं ने 10 साला तालिबे इल्म को भी चारपाई के साथ बांध दिया।
کوٹلی لوہارا میں چوک میں 2 گھنٹے سے بدترین ٹریفک جام. سیالکوٹ کی واحد تفریح گاہ ہیڈ مرالا جانے والی ٹریفک کی وجہ سے گاڑیوں کی طویل قطاریں، ٹریفک پولیس کی نااہلی اور وارڈنز کے غائب ہو جانے پر شہری سراپا احتجاج. تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال جانے والی سڑک بھی آمد و رفت کے لیے بند، مریض پریشان. مین چوک میں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. ٹریفک اہلکار ڈیوٹی سے مسلسل غائب رہنے لگے. ہیڈ مرالا روڈ، کوٹلی، مغربی، مشرقی لنک روڈز پر روزانہ کئی گھنٹے ٹریفک کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. THQ ہسپتال جانے والی ایمبولینس اور مریضوں کو شدید پریشانی اٹھانا پڑتی ہے. ہیڈ مرالا کے تفریحی مقام اور گجرات سیالکوٹ جانے والی ٹریفک میں شدید اضافے کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے، جبکہ ٹریفک پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. اہل علاقہ نے DPO سیالکوٹ سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. لسبیلا احساس پروگرام میں کرپشن کا انکشاف، ویڈیو منظر عام پر آ گئی. احساس پروگرام سینئر وندر میں مستحق خواتین کے پیسوں میں 500 روپے کٹوتی کا انکشاف. 12,000 روپے کے بجائے 11,500 روپے دیے جاتے ہیں. ملنے والے پیسے خاتون سے گن کر دکھائے تو اس سے 500 روپے کم ہوئے. مرید کے سٹی پولیس کا محلہ جناح پارک میں محنت کش کے گھر پر مبینہ چھاپا. پولیس کے مبینہ دھکوں سے 60 سالہ خاتون جاں بحق خاتون کے ورثہ کا احتجاج. پولیس ہمارے گھر بغیر کسی وجہ کے دروازے توڑ کر داخل ہوئی. محنت کش پولیس سے چھاپے کی وجہ پوچھی تو تشدد پر اتر آئی. محنت کش کا وزیر اعلیٰ اور IJ پولیس پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ. پولیس نے موٹر سائیکل چور کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا. پولیس نے کسی پر تشدد کیا نہ بدتمیزی کی. پولیس کا موقف.